So, good morning students, myself Professor P.B. Ingade, and today we have to conduct the practical number 3rd of a heat transfers. Okay. So, what is our name? The name of the practical is to determine the heat transfer coefficient by a natural convection methods. This is the name of our practicals. Okay. What is the name? Once again I am saying this name. What is? To determine the surface heat transfer coefficient for a vertical cylinders. So, if you consider these boys, so this setup is available, and from this setup what is we determine? We determine the value of the H. H is nothing but the heat transfer coefficients. But which method we have to use here? We have to use the natural convection methods. So, we know the meaning of convection heat transfer. Convection means the heat is transferred between the two medium, that is called as convection. And another is which method of the convection here? Natural convections. Natural means nothing but the free convections. So, here guys, if you observe in a setup, so we very well familiar this setup because we already discussed the two practicals of a heat transfer. So, what is in setup? What is consist? It is consist the dimmer stat, the function of the dimmer stat to regulate the voltage. Then voltmeter will be used there to measure the voltage. Then ammeter is used to measure the current. Then this thermocouples is used, the function of the thermocouples to measure the temperatures. These are the switches. By using the switches we start this system. Yes or no? Yes. And this is the one container is given. Inside the container, if you consider here, the one vertical pipe is given. ये बच्चों आपको एक वर्टिकल पाइप दिख रहा है, एक वर्टिकल ट्यूब दिया है, बराबर है. और इसको हमने कहाँ रखा है? ये कंटेनर में रखा है, बराबर है. इसको हमने अच्छे तरह से सील कर लिया. क्यों सील कर लिया? क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर उसका मेंटेन रहना चाहिए. और अंदर का जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है? हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स. ओके. फिर बच्चों ये जो वर्टिकल पाइप दिख रहा है इसके ऊपर हमने थर्मोकपल्स लगाए. आपको दिख रहे होंगे थर्मोकपल्स. कितने थर्मोकपल्स लगे उसके ऊपर? 6 लगे हैं. 1 2 3 4 5 और 6 मीन्स दे आर टोटल 6 thermocouples is attached on this vertical cylindrical ट्यूब. ऐसे 6 लगे उसके ऊपर, दिख रहे होंगे आपको. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके. तो ये पाइप जो हमारे पास में है इसको हम हीट सप्लाई करेंगे. तो देयर इज अ स्विचेस. इफ यू कंसीडर दिस इज अ स्विच विल बी देयर्स. ये स्विच है और बाद में ये स्विच हम सॉकेट में लगा देंगे और फिर हम इसको हीट सप्लाई करेंगे. ठीक है गाइस. तो जब इसको हीट सप्लाई होंगी ये पाइप को, तो वो हीट सप्लाई क्या रही थी हमारी? क्यू का क्या फार्मूला रहेगा हमारा? वोल्टेज इंटू करंट, बराबर है. वोल्टेज हम मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से और करंट हम मेजर करेंगे एम मीटर से. तो ये वर्टिकल पाइप को कितना क्यू जा रहा है हम निकाल लेंगे. जब ये पाइप हीटेड हो जाएगा आफ्टर द हीट सप्लाई, आफ्टर द पावर सप्लाई, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा पाइप का. जब ये पाइप का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसमें से हीट ट्रांसफर होंगी कहाँ पे? सराउंडिंग में. और कौन से मेथड से होंगी बच्चों? बाय द नेचुरल कन्वेक्शंस, बराबर है. तो फिर ये पाइप के आजू बाजू में जो है वो कौन सी एयर है? कोल्ड एयर है. तो जब ये पाइप को हम हीट सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके आजू बाजू की जो कोल्ड एयर है वो हीट एब्जॉर्ब करेंगी. द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम पाइप टू दिस कोल्ड एयर and the density of the cold air is then decreases and this cold air is become hot and rise in upward direction. ये दूसरी जगह पे चल जाएंगी. जैसे ही ये दूसरी जगह पे चल जाएंगी यहाँ पे क्या हो जाएंगी? वैकेंसी हो जाएंगी और यहाँ पे फिर कौन सी एयर आ जाएंगी? तुरंत वहाँ पे कोल्ड एयर आ जाएंगी. फिर बाद में ये पाइप में से और हीट ट्रांसफर हो जाएंगी. वंस अगेन दैट प्लेस द कोल्ड एयर इज रश. ओके. दिस कोल्ड एयर इज वंस अगेन एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस वर्टिकल पाइप. Its density will be decreases, rise in upward directions. Then once again the cold air is come into that positions. Once again is absorb the heat from vertical pipe and rise in upward direction. And this phenomenon is nothing but the heat transfer by natural convection. Natural convection means the heat is transferred due to the density difference. Okay, that is called as the natural convection or free convections. Okay, तो ये समझ में आ गया बच्चों. अब मैं सेटअप चालू कर देता हूँ. देखिए
पहले ऊपर कर लेते बच्चों, ठीक है। अब ये सेटअप चालू हो गया, ओके। ये दिख रहा है आपको, ये इंडिकेटर दिख रहा है, मतलब इसके अंदर करंट आना चालू हो गया। सबसे पहले इसके प्रिकॉशन क्या है बच्चों, देख लिए। अभी मैं प्रिकॉशन बताता हूँ आपको। व्हाट इज द प्रिकॉशन यू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट? Precaution means switch off a ceiling fan before given supply to the setup. This ensure a natural convection of a heat transfers. Okay? मतलब सबसे पहले हमको बच्चों जो हमारे लैब में जो पंखे होंगे ये हमको बंद करना है। ये हमारा सबसे पहला प्रिकॉशन दिया है। स्विच ऑफ अ सीलिंग फैन बिफोर गिविंग सप्लाई हीट टू अ सेटअप. दिस इज इंश्योर बाय अ नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन्वायरमेंट्स। क्योंकि हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेचुरली, तो सबसे पहले ये करना ज़रूरी है। उसके बाद में बच्चों देखिए, ये स्विचेस मैं ऑन कर देता हूँ। ये स्विच ऑन हो गए। ये हीटर का स्विच है और ये है टेम्परेचर का स्विच। जैसा मैंने हीटर का स्विच चालू किया तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर चालू हो गया। ये स्विच जब मैंने चालू किया तो टेम्परेचर इंडिकेटर चालू हो गया। फिर ये जो डिमर स्टैट है बच्चों, इसको हमको 0 पोजीशन पर रखना है, ओके। तो ये हमारा सेकंड प्रिकॉशन मीन्स एडजस्ट द टेम्परेचर इंडिकेटर टू एम्बिएंट लेवल बाय यूजिंग द कंपेंसेशन स्क्रू बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमको पहले एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर कर लेना चाहिए, ओके। बाद में फिर कीप द डिमर स्टैट टू 0 होल्ड पोजीशन एंड इंक्रीजेज स्लोली। ये डिमर स्टैट को हमको 0 पोजीशन पर रखना है, फिर धीरे धीरे इसको हमारे को वोल्टेज को बढ़ाना है, करंट कंजम्पशन बढ़ाना है। बाद में यूज अ प्रॉपर रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर्स, ओके। वोल्ट मीटर और एमीटर हम यूज करने वाले हैं। ऑपरेट द चेंज ओवर स्विच ऑफ अ टेम्परेचर इंडिकेटर जनरली फ्रॉम 1 पोजीशन टू अदर फ्रॉम पोजीशन 1 to 8 एंड नीड नेवर एक्सीज 80 वाट पावर्स। तो यहाँ पे हमको जो पावर सप्लाई करना है वो 80 वाट है, उसके ऊपर का पावर हम सप्लाई नहीं करेंगे। उसके ऊपर का पावर सप्लाई करेंगे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा। और पावर हम किस तरह से निकालेंगे बच्चों? Q इज इक्वल टू V इंटू I फार्मूले से। यस और नो? यस। देन आफ्टर गाइज, अब यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है। स्विच ऑन अ सप्लाई मैंने स्विच ऑन कर दिया, ओके। आफ्टर द स्विच ऑन अ सप्लाई एडजस्ट द डिमर स्टैट। ये यहाँ पे डिमर स्टैट दिख रहा है आपको। डिमर स्टैट टू स्टार्ट एंड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड हीट इनपुट 50 वाट, 70 वाट एंड 80 वाट। जब तक हमको डिमर स्टैट को एडजस्ट करना है, जब तक हम अचीव कर लेते हैं। पहला हमारा टारगेट है 50 वाट के लिए हम रीडिंग लेंगे, फिर लेंगे बच्चों हम 70 वाट के लिए, फिर लेंगे हम 80 वाट के लिए। यस और नो? यस। बाद में फिर है मॉनिटर द टेम्परेचर T1 टू T6। अब ये जो वर्टिकल ट्यूब दिख रहा है इसके ऊपर हमने कितने थर्मोकपल लगाए? 6। तो वो टेम्परेचर मेजर करेंगे हम ये थर्मोकपल से 1 2 3 4 5 6 से। और ये थर्मोकपल कौन सा रहता है हमारा? एनुअल थर्मोकपल्स या फिर क्रोमिनल थर्मोकपल्स। एमीटर में जो करंट रहेगा वो रहेगा बच्चों 0 to 2 एम्पियर तक। उसके बाद में जो वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज रहेगा वो कितना वोल्टेज रहेगा? 0 से लेके तो 200 वोल्ट तक। बाद में हमारा जो डिमर स्टैट है इसकी कैपेसिटी दी है हमारे को 2 एम्पियर करंट से लेके तो 240 वोल्टेज तक। यस और नो? यस। अब यहाँ पे कुछ हमको ये स्पेसिफिकेशन दिए है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में अगर देखेंगे तो ये जो ट्यूब जो दिख रहा है बच्चों हमारे को, द आउटर डायमीटर ऑफ द ट्यूब हमको दिया है 38 mm। मतलब 38 mm का हमारे पास में ये वर्टिकल ट्यूब है, ओके। सिलेंड्रिकल दिख रहा है आपको। बाद में इसकी लेंथ दी हमारे को, द लेंथ इज हाउ मच? द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 500 mm। मतलब यहाँ से ये 500 mm का है और इसका डायमीटर है 38 mm गाइस, ओके। बाद में फिर आफ्टर कंप्लीट ऑल द रीडिंग्स, अब देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या पैरामीटर दिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो डक्ट दिख रहा है आपको, ये डक्ट की साइज दी है। द डक्ट साइज विल बी व्हाट इज? इट इज 200 mm बाय 200 mm बाय 800 mm लेंथ। ये हमारा जो डक्ट दिख रहा है इसके अंदर हमने स्टडी स्टेट टेम्परेचर मेंटेन किया है। ये डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए इसलिए इसको हमने कवर भी करके रखा है। फिर बाद में नंबर ऑफ द थर्मोकपल मैंने बताया 6 है करके। उसके बाद में मल्टी
चैनल डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर है जो बताएगा टेम्परेचर 0 से लेके तो 300 डिग्री सेल्सियस तक। बाद में एमीटर आपको पता है और डिमर स्टैट के बारे में भी आपको पता है, बराबर है। फिर बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करेंगे TA, यस और नो? यस। तो आफ्टर मेजरिंग द एम्बिएंट टेम्परेचर, तो जनरली एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे पास में कितना रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको निकालना है H, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे बच्चों हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हम निकाल रहे हैं नेचुरल कन्वेक्शन के लिए, तो उसका एक फार्मूला है जो मैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे आपको समझा के दूंगा। तो उसका फार्मूला H इज इक्वल टू Q माइनस स्मॉल q1 अपॉन AS इन ब्रैकेट TS माइनस TA। तो बच्चों Q तो हमने निकाला कैपिटल काय से, वोल्टेज इंटू करंट से। स्मॉल q1 जो है हमारा ये है हीट लॉस बाय रेडिएशंस। अब ये जो वर्टिकल पाइप है इसको जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा, तो फिर ये पाइप जो है हीट लॉस करेगा बाय कन्वेक्शन से तो करेगा, लेकिन रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफर होंगी, बराबर है। इसलिए हमने वहाँ पे एक Q1 स्मॉल q1 पैरामीटर लगा दिया, क्योंकि कुछ हीट लॉस जो होंगी वो रेडिएशन से भी होंगी, क्योंकि हमको पता है कि एवरी हॉट बॉडी इमिट्स अ रेडिएशंस। तो इसलिए फिर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q1 के लिए हमको हमारे पास में फार्मूला आ जाएगा सिग्मा AE इन ब्रैकेट TS टू द पावर 4 माइनस TA टू द पावर 4। ये सब कैलकुलेशन मैं आपको समझा के दूंगा, ओके। बाद में जो TS जो है बच्चों हमारा वो है एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ दिस वर्टिकल पाइप। ये सबका एवरेज रहेगा काय का T1 T2 T3 T4 T5 T6 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि पाइप जो है वो हर जगह से हीट होगा, तो हर जगह से कितना टेम्परेचर है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये थर्मोकपल यूज करके बच्चों, ओके। तो TS हमको निकाल लिया हमने, TA निकाल लिया। बाद में AS जो है वो एरिया ऑफ द पाइप है, तो वो क्या रहेगा फिर फार्मूला सिलेंडर के लिए पाई DL, D हमको पता है, L हमको पता है, पाई की वैल्यू पुट करो हमको एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे कौन सा पैरामीटर H, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गाइस, ओके। बाद में फिर वेरिएशन ऑफ अ लोकल हीट ट्रांसफर हीट कोएफिशिएंट अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब यूजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास में फार्मूला आएगा H इज इक्वल टू Q अपॉन AS इन अ ब्रैकेट TS माइनस TA। तो ऐसे दो पैरामीटर हम यहाँ पे निकालेंगे बच्चों। एक निकालेंगे हम जब रेडिएशन से हीट लॉस होंगी, और दूसरा निकालेंगे सिर्फ हम हीट लॉस हो रही ये ट्यूब से, वहाँ पे हम रेडिएशन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों सबको? तो एक बार देखिए, अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये स्विचेस आ गए, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है। डिमर स्टैट को क्या करेंगे हम एडजस्ट करेंगे, रेगुलेट करेंगे। देखिए ठीक है, मैं ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ। देखो अभी वोल्टेज कितना हो गया, 40 वोल्ट हो गया। इधर करंट बढ़ते रहेगा, वोल्टेज इंटू करंट हमको क्या मिलेगा, Q का वैल्यू मिलेगा, बराबर है। ये पाइप के ऊपर कितने थर्मोकपल्स है 6, इनके रीडिंग हम मेजर करेंगे ये नॉब को घुमा के 1, फिर ये मिलेगा हमको 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके। तो ये नॉब जो यूज़ कर रहे हैं बच्चों हम यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। बराबर है। और यहाँ से हम इसको वोल्टेज लिखेंगे, इसका हम यहाँ से करंट, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द हीट ट्रांसफर बाय अ नेचुरल कन्वेक्शन गाइड्स, ओके। तो इसके बाद में हम हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में किस तरह की कैलकुलेशन आएंगी ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और हर 5 मिनट के बाद में हमको रीडिंग लेना है। 5 मिनट तक एक्सपेरिमेंटल को सेट करना है, हीट करना है, फिर हम रीडिंग लेंगे, फिर उसके बाद में फिर और 5 मिनट के बाद में रीडिंग लेंगे। तो इस तरह से हमको जितनी चाहिए 5-6 हम रीडिंग ले लेंगे बच्चों। यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज के लिए, अलग अलग वैट के लिए, तो कोई भी हम उसमें का एक चूज करेंगे और हमारा कैलकुलेशन हम बनाएंगे बच्चों। यस और नो? यस। So now we have to focus our observation tables.
So good morning students. Now we have to focus the observation tables of a third practicals. Okay. तो ये थर्ड प्रैक्टिकल में हमको क्या निकालना है बच्चों, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब बाय नेचुरल कन्वेक्शंस। तो क्या फार्मूला हमारे पास में, Q माइनस Q1 अपॉन AS इंटू TS माइनस TA गाइस। ओके, TS जो है हमारा एवरेज टेम्परेचर है जो पाइप के ऊपर हमने थर्मोकपल्स लगाए, कितने थे हमारे पास में, 6 थे, T1 T2 T3 T4 T5 T6 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए। पहले हमने वोल्टेज कितना सेट किया डिमोस्टैट का यूज़ करके, 50 वोल्ट, कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.31 एम्पियर, और हमने रीडिंग निकाले T1 के, T2 के, T3 T4 और T5 और T6। T1 का हमारा पहला रीडिंग आया 51.9 डिग्री सेल्सियस, T2 आया 50 डिग्री सेल्सियस, T3 आया 41.5 डिग्री सेल्सियस, T4 38.7 डिग्री सेल्सियस, T5 36.3 डिग्री सेल्सियस और T6 33.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसी तरह बच्चों जब हमने और रीडिंग को चेंज किया 50 वोल्ट, अगर तब हमारे पास में करंट है 0.16 एम्पियर का, तो हमारे को ये रीडिंग मिले। तो इसमें क्या, कौन सा भी रीडिंग हमको चूज करना है। ओके, तो हमने ये वाले रीडिंग यहाँ पे चूज किया बच्चों, T1 और T2 की वैल्यू डिवाइड बाय 6, तो हमारे को यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई 42.01 डिग्री सेल्सियस, ये TS की वैल्यू। ओके, एवरेज टेम्परेचर अलोंग द लेंथ ऑफ अ ट्यूब पाइप 42.01 डिग्री सेल्सियस, उसका हमने केल्विन में किया, कितना आया 31.501 डिग्री केल्विन। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो गया 300। ओके, फिर यहाँ पे बच्चों देखिए हमने Q निकाला। Q कैसे निकाला हमने, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट, सो 50 इंटू 0.31, तो ये आ गया हमारे पास में 50.5 वाट, बराबर है, जो हमने यहाँ पे पुट किया। Q1 का हमारे पास में फार्मूला है सिग्मा A इमिजिबिलिटी मीन्स इप्सिलॉन T टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4 माइनस TA टू द पावर 4। ये वैल्यू हमने बच्चों यहाँ पे पुट की और हमको स्मॉल Q1 मिला 3.54 वाट। तो ये वैल्यू पुट की यहाँ पे। AS मीन्स एरिया ऑफ द पाइप। ओके, फिर 0.05966 इंटू 42.01 माइनस 27, ये हमारा AS है, एरिया ऑफ द पाइप। तो हमको H की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 13.35 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन्स। यस और नो, यस। और यही हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। अगर हम सिर्फ पाइप के लेंथ लेते हैं, ओनली द लेंथ ऑफ द पाइप, यहाँ पे हमने ये Q1 जो है ये हमने अगर 0 कंसिडर कर डाला, तो फिर हमारे पास में फार्मूला क्या आएगा, H इज इक्वल टू Q अपॉन AS माइनस TS माइनस TA गाइस। तो ये वैल्यू हमने पुट की Q की, AS की वैल्यू TS माइनस TA, तो ये वाला हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमको मिला 17.30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन्स। ओके, तो एक ये पहला हमको मिला अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंप्लीट ट्यूब ऑफ द पाइप, और यहाँ पे हमने स्मॉल Q1 जो है वो 0 करके अगर दूसरा कैलकुलेशन किया तो ये रीडिंग मिला। ओके, तो ये हमारा कंक्लूजन है। दिस इज द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल नंबर 3rd। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंटिन्यू विथ प्रैक्टिकल नंबर 4 गाइस।